सृष्टि अनित्य है, यही तो एक सत्य है। ये सृष्टि अनित्य है, यही तो एक सत्य है। नैतिकता तुम अपनाओ, बुद्ध की शरण में आओ। At peaceful place, strive for good things, follow the path of Dhamma, listen to all, pursue an art form, be generous and kind, take care of your responsibilities, be loving to fellow human beings, stay away from evil deeds, be pious in thoughts, words and deeds. बात तो सादी है, सरल है, लेकिन अक्सर सरल चीजें ही समझने में कठिन होती हैं। और ये दुनिया जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर पर लड़ाई झगड़े और युद्ध में उलझी है, इस दुनिया को आज बुद्ध के संदेश की जितनी आवश्यकता है उतनी शायद इससे पहले कभी नहीं थी। ये दुनिया जो अपने विनाश की राह पे चल पड़ी है, उसको उस विनाश की राह से रोकने का, शांति का, प्रेम का, मानवता का, समानता का जो संदेश हम इस माध्यम से देना चाह रहे हैं, वही है डिवाइन सरेंडर। एंड लेट मी टेल यू something briefly about Sri Rajkumar Badole ji's vision and his contribution. Rajkumar Badole ji is a writer, producer, concept maker, organizer, and he has worked for years to propagate and present the Dhamma of Buddha in different spiritual and cultural ways. As a minister of social justice, his major contribution was for the underprivileged people, and it was really commendable. He has been instrumental in getting the government of India purchasing Dr. Ambedkar's house in London, where Dr. Ambedkar studied in London School of Economics in 1921 and 22. He had also been instrumental in finalizing Dr. Ambedkar Memorial in Indo Mill, Mumbai. This anthem, Divine Surrender, is his brainchild. ये संकल्पना राजकुमार बडोले जी की है, जिन्होंने अपना अब तक का पूरा सामाजिक जीवन, राजनैतिक जीवन भगवान बुद्ध के मार्ग पर, उनके आदर्शों पर चलते हुए ही बिताया है। उन्होंने न केवल समाज के उस वर्ग के लिए कार्य किया जो बहुत अंधेरे कोनों में होता है, जिसे रोशनी की सबसे ज्यादा जरूरत है, बल्कि भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलने वाले और बाबा साहेब अंबेडकर के मार्ग पर चलने वाले एक जागरूक नागरिक की भूमिका निभाते हुए उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और उसी कारण भारत सरकार ने लंदन में स्थित उस घर को खरीदा जहां बाबा साहेब 1921-22 के दौरान लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ते वक्त रहा करते थे। इंदू मिल में बाबा साहेब अंबेडकर का स्मारक बनाने के लिए जो निर्णय लिया गया है, उसमें भी राजकुमार बडोले जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो चाहे शासन स्तर पर बड़े निर्णय हों या सांस्कृतिक स्तर पर भगवान बुद्ध का संदेश प्रसारित करने के लिए किए जाने वाले कार्य हों, वे सदैव ही अग्रणी रहे हैं। अब हम उनके विचार, जिन विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने इस एंथम की संकल्पना की, उनकी एक झलक देखेंगे। द टीजर ऑफ द एल्बम प्लीज। यही तो एक सत्य है। Hi, this is Pawa. I'm from India. I'm a composer of this song. This song is written by Mr. Badole. The beautiful song, Divine Surrender, based on Buddha's philosophy of love, friendship, and compassion. So we are here in this beautiful Studio 28 of Thailand. This is the largest studio of Southeast Asia. शरण में आओ, धम्म की शरण में आओ, संघ की शरण में आओ। We've just finished recording Divine Surrender, which was written and composed by Mr. Badole and Mr. Pawa. And
It's an incredible piece. It's got beautiful soaring lines that go sky high. And it's got stunning percussive motifs that really rock you. Hi, my name is Brian. I'm the orchestra manager for the Studio 28. Thank you for bringing us the project, the Divine Surrender for Buddha song. ก็เป็นเพลงที่เป็นบทเพลงที่มีเมโลดี้ที่สวยงาม แล้วก็เป็นเพลงที่มีความไพเราะเป็นอย่างมากนะครับโอเคครับขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงครับ เกี่ยวกับบูดานะคะแต่งโดยชาวอินเดียค่ะก็วันนี้หลังจากที่ได้อัดเสร็จเนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นเพลงที่เพราะมากเลยนะคะแล้วก็เกี่ยวกับการแบบเหมือนสวดมนต์เกี่ยวกับพุทธศาสนาอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนลองฟังแล้วก็เพลิดเพลินไปกับเพลงนี้ดูนะคะ Honorable Chief Guest of this event, His Highness Consulate General of Thailand, और यहाँ उपस्थित सभी मेरे साथियों, all dignitaries on the dais, my family, my Dr. Shruti Badole, and all VIPs, my beloved friends, Captain Natkit for Thailand, Badanta Rahul Bodhisi, and all my friends. Today is a special day for me. My family and my Yugandhar creation, Mr. Aniket Badole. This is the third presentation of Yugandhar creation to you. First album was it was a Buddhist songs written by me and my wife Sharda Badole, named Yugandhar, was released in 2018, I think on 26 September 2018 by Honorable CM of Maharashtra, Shri Devendra Fadnavis ji in Sanmukhanand Hall. The song sung by Shri Hariharian ji, Shankar Mahadevan ji, Bela Shinde, Madhushri Bhattacharya, Adarsh Shinde, and so many singers of Maharashtra. It was purely dedicated to Dr. B.R. Ambedkar and Tathagat Bhagwan Buddha. 2020 में हमने एक मराठी फिल्म बनाई थी, दाह एक मर्मस्पर्शी कथा. इट वॉज रिलीज बिफोर कोरोना. और ये तीसरा बुद्धिस्ट एल्बम है, वीडियो है. एक मेरे बहुत अजीज दोस्त, या मैं कहूँ उन्हें लाइक माय सन, मिस्टर गगन मलिक. प्लीज एक बार उनके लिए हाथ तो जरा तालियां बजनी चाहिए. जब मैंने ये गीत लिखा और गगन जी को भेजा, और मैंने जब चर्चा की, ऐसे कई गीत मैंने लिखे और भेजा, तो इस बुद्धिस्ट जर्नी में एक समर्पित गायक जिसका नाम पावा है, उसका नाम उन्होंने सबसे पहले मुझे बताया. और ये दोनों देश में और देश के बाहर धम्म के लिए बहुत अग्रणी है, या तो कहूं धम्म के एक पांथस्थ है, या धम्म के लिए लड़ने वाले फकीर से है. ये यात्रा हमारी जब आरंभ हुई
इसमें हमारे कई साथियों ने हमें साथ दिया। हमारे के ओएसडी जनबंधु साहब जो यहाँ बैठे हैं, अतुल सोनवाने जी, इन सब लोगों ने इसमें बहुत साथ दिया। इस एल्बम के को प्रोड्यूसर जनबंधु जी है और एक बड़ा नाम टीवी और फिल्म इंडस्ट्री में, फिल्मांकन में एक जो बड़ा नाम है नीरज प्रभाकर जी, उनके लिए एक बार तालियां तो होनी चाहिए। बहुत सारे सीरियल उन्होंने बनाए, या तो कहो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सीरियल का फिल्मांकन शायद नीरज प्रभाकर जी के नाम पे इन्होंने ये फिल्मांकन किया। अंतिम फिल्मांकन थाईलैंड के स्टूडियो 28 में हुआ और आज हम इस लॉन्चिंग के अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं। दिस इज डिवाइन सरेंडर। ये बुद्ध के चरण में अर्पित प्रार्थना है। भगवान बुद्ध अपने आप में अलग, भगवान बुद्ध अतुलनीय, भगवान बुद्ध उनकी तुलना नहीं की जा सकती। वे इस धरती पर आए सबसे अलौकिक, सबसे सुंदर, या कहे सबसे प्रबुद्ध। वे धार्मिक जगत में एक क्रांति है, ईश्वर रहित धर्म के संस्थापक। यहां पहली बार ईश्वर धर्म का केंद्र नहीं है, मनुष्य धर्म का केंद्र है। मानवीय मूल्य, मानवीय आचरण, नैतिकता, कंपैशन, ये सब धर्म का केंद्र है। धम्म पद में कहा गया है, मनोपुग्गमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसाजे उदुत्थेन भासतियो करोतिवा। इसका मतलब मन सभी धर्मों का प्रधान है। जब कोई व्यक्ति मन को मैला कर देता है या आचरण करता है तब दुख उसके पीछे पड़ता है। जैसे गाड़ी के चक्के के पैरों के, जैसे गाड़ी के चक्के बैलों के पैरों के पीछे चल हो लेते हैं। धम्म पद में कई ऐसी बातें हैं, या कहो तो बुद्ध धम्म का सार है, मनुष्य के आचरण पे आधारित ये सब सार है। और जैसे कि हमारे मंत्री महोदय संजय सावकार जी आए, उनके लिए एक बार तालियां हो जाए। धम्मपद में जैसे कहा है, नहीं वेरेन वेरानी समंती तो कुदाचन अवैरेने संपत्ति ऐस धम्मो सनातनो। कभी वैर से वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। यही सच्चा सनातन धम्म है। धम्मपद या बुद्ध की वाणी मानवीय मूल्य की गाथा है। यही डिवाइन सरेंडर का सार है। डिवाइन सरेंडर मीन्स सरेंडर द सेल्फ to truth. The Buddha doesn't say surrender to a god. The Buddha said he teaches us to let go of our ego, our wants, our fear. Divine surrender means trusting the truth of life. हमने भगवान बुद्ध के विचारों पर आधारित ये जो डिवाइन सरेंडर बनाया है, और आप इसके लिए सभी आए हुए सभी अतिथियों का, गणमान्यों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और यहाँ पे जिन लोगों ने हमें इस डिवाइन सरेंडर के एक बहुत ही इस प्रवास में जिन जिन लोगों ने हमें साथ दिया, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सभी आए यहाँ पे, सभी को मन से धन्यवाद देते हुए अपने शब्दों को ये विराम देता हूँ। जय भीम, जय बुद्ध, धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, नमस्ते, सवादिखाप। First of all, I give my regards to Venerable Mahasangha, who is here, and then definitely His Excellency to come here, Mr. Donavit Pulsawat, and Excellency the Honorable Minister of Textiles, who have taken a precious time to come here. Thank you so much, sir, for coming. And of course, our dear friend, the Election Commissioner of Maharashtra, Mr. Dinesh Bagmareji is also here. And our, you can most senior, my fatherly figure, Shri Rajkumar Badoleji, and Excellency from Sri Lankan Embassy. Sri Lanka is also like my home because Sri Siddhartha Gautama, I learned the Dhamma, I embraced Buddhism in Sri Lanka. My Kaushi is here, Kaushi Vikramasinghe, my brother Natakit, and all my friends, Neeraj Prabhakar ji, Jyoti Jha ji, everyone who's here.
This journey was very divine. That's why we have given this name Divine Surrender. Mr. Rajkumar Badole ji, he wrote the song and he came and we discussed about the song here. I want everyone to be little silent here so that we can talk. Just for a second. Silence please. Silence please. Okay. ये बात हम यहाँ पर जो जितने भी बुद्धिस्ट लोग हैं वो बाबा साहब का सपना पूरा करने में लगे हुए हैं। एक सपना था बाबा साहब का कि बौद्धमय भारत देखना चाहते हैं। इसलिए हर बुद्धिस्ट का एक कर्तव्य है भी कहीं ना कहीं किसी भी रूप में अगर वो अपना योगदान दे सकता है इस भारत को बौद्धमय बनाने के लिए तो उसे देना चाहिए। उसी ही रास्ते में फॉलो करते हुए मैं अपने लेवल पर जो भी कर पा रहा हूँ, चाहे वो मूर्तियाँ हो, चाहे वो कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो एल्बम हो, चाहे वो फिल्म हो, मैंने अपना जीवन जो है उस बौद्धमय भारत के लिए समर्पित कर दिया है। आज ये गाना बाबा साहब ने बहुत अच्छे से गाया है, बड़े अच्छे से कंपोज किया है। जितने खूबसूरत शब्द हैं उतनी खूबसूरती से इसे बनाया गया है, उतने ही दिल से इसे बनाया गया है। और इस गाने के लिए हमने कम से कम आई थिंक 1 से 2 साल सब्र किया है। कोरोना आ गया, कभी कुछ आ गया, हम इसे रिलीज़ नहीं कर पा रहे थे। उसका कारण हमेशा याद हमें रहता है कि जहाँ बुद्ध का कार्य आता है वहाँ मार जो है अपना काम करता ही करता है, चीज़ों को डिले करता है, लेकिन अंत में जो विजय है वो बुद्ध की होती है। तो आज ये गाने का लॉन्च नहीं, मुझे ऐसे लगता है हमारी विजय आज हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, जो संदेश पूरे भारत में लेकर जाएगा। एक बार फिर से मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता, लेकिन सभी का बहुत ही दिल से शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पिछले जन्म के मेरे कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे जो मुझे कई बार भगवान बुद्ध का रोल जो है करने का मौका मिला है। यही नहीं, और भी बहुत सारे डिवाइन स्पिरिचुअल रोल भी मुझे करने को मिले हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये पिछले जन्मों के कर्मों से जुड़ा है। तो उस यूनिवर्स का, उस एनर्जी का, बुद्ध का, धम्म का और संघ का मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसके साथ न्याय कर सकूँ। और आप सभी के प्यार के लिए भी एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। नमो बुद्धाय, जय भीम साहब। Thank you so much, Gagan Malik ji, and we wish you more and more success in your career and on your spiritual path as well. The composer of this anthem and the singer of this anthem, पावा की यात्रा बड़ी यूनिक रही है। छोटे से गांव से उन्होंने शुरुआत की और पूरी दुनिया भर में पहुंच गए। भगवान बुद्ध का संदेश संगीत के माध्यम से सबको देना, यही उनका मिशन है। और इसके लिए वो अलग अलग देशों की यात्रा करते हैं, अलग अलग म्यूजिशियंस के साथ कोलैबोरेट करते हैं, और जब वो मंच पर लाइव प्रस्तुति देते हैं तो बहुत बार ऐसे मौके आते हैं कि वो खुद उस बात में, उस गान में इतने डूब जाते हैं कि उनकी आंखों से आंसू बहते हैं और सामने सुनने वालों की आंखों से आंसू बहते हैं। मैं ऐसे अनेक मौकों के, अवसरों की साक्षी रही हूँ। पावा resisted the temptation of joining Bollywood to be on the path of Dhamma. So many offers he resisted, refused, and he declared that his only purpose is to use his musical talent to spread the message of Lord Buddha. तो पावा का जो गीत है वो ज्ञान का मार्ग, करुणा का प्रकाश, मैत्री का गान और प्रेम का भान है। बुद्धि से बुद्ध तक, ध्यान से धम्म तक, गान से मन तक पावा अपने स्वरों से हमें ले जाते हैं। मैं अब आप सबकी तालियों के साथ पावा को मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ, और हमारे म्यूजिशियंस मंच पर आ चुके हैं। So now we'll be presenting the anthem Divine Surrender, composed and sung by Pava with live symphony. ये सृष्टि अनित्य है, यही तो एक सत्य है। ये सृष्टि
अनित्य है, यही तो एक सत्य है। नैतिकता तुम अपनाओ, बुद्ध की शरण में आओ, धम्म की शरण में आओ, संघ की शरण में आओ। यो च बुद्धं च धम्मं च संघं च शरणं गतो, चत्तारि अरिय सच्चानि समप्पयाय पसन्ति। दुःखं दुःखसमुपादं दुःखस्य च अतिगमम्, अरियं चट्टं वितं मग्गं दुःखोपशमनामिनम्। एतं घोषरणं हेमं, एतं शरणं एतं शरणमहं मां, सर्वदुःखान् विमुच्यते, सर्वदुःखान् विमुच्यते। हिंसा को छोड़ो, प्रज्ञा को जोड़ो, हिंसा को छोड़ो, प्रज्ञा को जोड़ो, शील को जीवन में अपनाओ, असत्यवाणी, चोरी, बेईमानी, कुकर्मों से बच जाओ, बुद्ध की शरण में आओ, धम्म की शरण में आओ, संघ की शरण में आओ। तृष्णा के कारण ही दुख दर्द का निर्माण है, दुख के कारण ही हर शख्स आज हैरान है। दुख को मन से तुम मिटाओ, बुद्ध की शरण में आओ, धम्म की शरण में आओ, संघ की शरण में आओ। बुद्ध की वाणी, सत्य की कहानी, बुद्ध की वाणी, सत्य की कहानी, स्वयं प्रकाशित हो जाओ, चित्त जागेगा, तिमिर भागेगा, चैतन्य प्रभा बिखराओ, बुद्ध की शरण में आओ, धम्म की शरण में आओ, संघ की शरण में आओ। ऐसा कुछ सुनने के बाद सच में बोलने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है मैं उसी फील में रहना चाहिए, पर बोलना तो है। पावा, every song that you compose, it spreads a divine energy. But this song is very special. So I'm sure that you must have had a very divine experience while composing the music and while singing it.
So I request you to now please share this journey of divine surrender with us. Namo Buddhaya, everyone. Standing here for this launch is kind of blessed moment for my musical journey. मुझे याद है Brother Gagan sent me few years back one WhatsApp message with the lyrics written beautifully, handwritten lyrics of Badole sir. I gone through 2 lines only. ये सृष्टि अनित्य है, यही तो सत्य है, नैतिकता तुम अपनाओ, बुद्ध की शरण में हो. Immediately I felt, no, this is something beyond words, just like call of awakening. So as a musician, Buddhist musician, I wanted to keep and reflect all these Buddhist teachings in this. So I tried to play राग-based music. और मैंने जो दरबारी कानड़ा राग है, उसकी ट्यून की बेसिस पे मैंने ये गाना बनाया है. And special memory is the recording at Bangkok, Studio 28, with Grand Symphony was truly divine experiences of my life. We were there for 3 days, Badole sir, Sharda ma'am, and the energy, the sound, everything was aligning on higher side. So I truly blessed, and thank you Gagan brother, thank you Badole sir for making me the part of this sacred creation. Or this is not just a song, it's a message. So may it bring peace to every heart that listens. Thank you so much for, thank you. बड़े गर्व से हम हमेशा कहते हैं भारत देश ये गौतम बुद्ध का देश है. और जब भी कहीं बाहर जाते हैं भारत के बाहर, तो इस देश को एक शांतिप्रिय देश के नाम से जाना जाता है, जहाँ गौतम बुद्ध ने जन्म लिया और उन्होंने दुनिया को शांति का ही संदेश दिया हुआ है. और मुझे बड़ी खुशी हुई कि राजकुमार बडोले जी, जिसे हम सिर्फ एक राजनेता करके जानते थे, कि एक पॉलिटिकल आदमी है, पॉलिटिक्स में है, लेकिन ये इतने अच्छे कलाकार है, अभी आज पता चला हमें. एक खूबी और बता दूं, उनकी नागपुर में हमने उनके गाना भी सुना उनके मुंह से. बहुत अच्छा गाते भी है वो, आप लोगों को शायद पता ना हो. हेलो बाबा जी, ये बहुत अच्छा गाते भी हैं, शायद आपको टक्कर भी दे दे, इतना सुरीली आवाज़ है उनकी. लेकिन आज ये डिवाइन सरेंडर बहुत ही अच्छा एल्बम रिलीज़ हुआ है, जिसमें थाईलैंड, श्रीलंका के सभी महानुभावों ने साथ दिया है. मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे मित्र बडोले जी को जो इतना अच्छा लिखते हैं, उनकी खूबी दुनिया के सामने आए, खास करके महाराष्ट्र और भारत के सामने कि एक अच्छे कलाकार, एक राजनीति में भी इतने अच्छे कलाकार होते हैं. तो मैं इस डिवाइन सरेंडर के लिए बहुत बहुत उनको बधाई देता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि ये एल्बम खूब चले, बहुत लोगों को पसंद आएगी. बहुत अच्छा गाया भी है आपने, आपकी एक्टिंग भी देखी हमने और म्यूज़िक भी बहुत अच्छा है, तो ज़रूर ये लोगों को बहुत अच्छा लगेगा. मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ. धन्यवाद माननीय मंत्री जी. नमस्कार सबको. मेरे भाई, मेरे दोस्त गगन मलिक, श्रीलंका में हमारे पहली मुलाकात हुई थी गौतम बुद्ध मूवी के वजह से. और आई फील सो प्राउड गगन जी, आपने बहुत बड़ा काम किया. इस काम के साथ आपको सहायता दिया है बडोले जी, हमारे एक्स मिनिस्टर साहब ने, और पावा जी और बाकी जितने भी टेक्निकल टीम. 26 साल से इंडिया के साथ मैं काम कर रही हूँ. मैं श्रीलंकन बॉर्न हूँ, थोड़ा बहुत हिंदी जानती हूँ, और मैं बॉलीवुड प्रोड्यूसर हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर हूँ. भारत माता को जय हिंद. I'm so proud to be here joining with you this important and very spiritual moment for me. I thank you for all the team which is so much closer to me, and I was looking to meet you. Actually, the Buddhism, the land of the Bharat Mata, we worship you. This is the great opportunity to give this message to all of the world. I appreciate and bless you all who gave this their service and their timing, their creativity to develop this divine surrender. I wish you all, may the triple gem bless you. Thank you. नमस्कार, नमो बुद्धाय सभी को. पीस, कॉम्पैशन और अवेकनिंग, ये बुद्धा का जो मैसेज है, बुद्धा का मैसेज एक्चुअली स्प्रेड करने के लिए
बहुत ही ब्यूटीफुल गाना बनाया गया है और माननीय बडोले सर ने जो इनका लिरिक्स लिखा है वो भी बहुत सुंदर है और स्पेशली पावा जी ने इसको गाना किया, पूरे दिल से वो गाना गाया है और एक्चुअली उसका म्यूज़िक भी जो है जो थाईलैंड में स्टूडियो में उसको रिकॉर्ड किया गया है वो एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट एक्चुअली ये गाना बना है, पूरे दिल को छू लेने वाला ये गाना है। और ये गाने के साथ जो फुटेज है, वीडियो फुटेज में भी गगन मलिक जी ने उनका जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छा दिया है। बुद्धा का मैसेज स्प्रेड करने के लिए ये अभी तो हिंदी में गाना बना है और जल्दी ही बाकी लैंग्वेज में भी ये गाना बनाया जाएगा और बुद्धा का मैसेज पूरे दुनिया में ये गाने के माध्यम से फैलाया जाएगा। और ये गाना बनाने वाली युगंधर टीम को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और उनको बेस्ट विशेष देता हूँ। धन्यवाद। कैसे एक्सपीरियंस रहा डिवाइन सरेंडर पे काम करके? मैं जब म्यूज़िक बनाता हूँ इट्स अबाउट पीस और ग्रेटेस्ट बुद्धा म्यूज़िकल मेडिटेशन ऐसा नाम देते हैं हम लोग। एंड बुद्धा's म्यूज़िक इज़ नॉट जस्ट म्यूज़िक, इट इज़ मेडिटेशन। और हम हर एक ट्रैक जो कंपोज करते हैं ये वर्ड्स हैं, सो पावरफुल वर्ड्स गिव मी। और मुझे बहुत आसान हुआ, मुझे ये ट्यून इमीडिएट आई। मैंने जब सिर्फ वो गाना देखा, पेपर देखा, तभी मुझे ट्यून आई थी। और हम लोग ऐसे ही काम करते हैं। दिस इज़ फॉर ग्लोबल पीस, इनिशिएटिव फॉर ग्लोबल पीस। सेम क्वेश्चन करूँगा, आपने भी कई सारे लोगों पर सेम सब्जेक्ट पे काम किया है, इसमें काम करके कैसा लगा? मुझे ऐसे लगता है कि जितने भी भगवान हैं उनकी जिम्मेदारी जो है मेरे कंधों पर ही है। इतने सारे रोल जो हैं वो कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि इस पूरे विश्व को जिस दौर से ये गुजर रहा है और केवल शांति की ज़रूरत है, हमें बुद्ध चाहिए, युद्ध नहीं चाहिए। बाबा साहब बड़े ही दूरदर्शी थे, उन्होंने पहले ही देख लिया था कि इससे बड़ा धम्म दुनिया में कोई नहीं हो सकता। ये माने या ना माने, आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद ये भारत ही नहीं, ये पूरा विश्व बौद्धमय होगा। ये उनकी सोच थी, आप ये बात का ध्यान रखें। और यही मैसेज जो है उनका, अपने एक आर्टिस्ट के तौर पर ये मैसेज मैं पूरे दुनिया तक लेकर जाना चाहता हूँ। अपने बडोले साहब के आशीर्वाद से, पावा साहब के साथ से, नीरज प्रभाकर जी के साथ से। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जब बड़े लोगों का साथ मिलता है, लाइक हिज एक्सीलेंसी फ्रॉम थाईलैंड, एक्सीलेंसी फ्रॉम श्रीलंका एंड ऑनरेबल द मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल हिमसेल्फ हैव कम। वो अपने सारे काम छोड़कर इस एक गाने के लिए हमारा साथ देने यहाँ पर आए। ये कौशी जी सिर्फ एक दिन के लिए श्रीलंका से आई, नटकिट सिर्फ एक दिन के लिए थाईलैंड से आया। तो ये जो साथ है ये हमें और मजबूत देता है और ताकत देता है कि आने वाले समय में हम और अच्छी चीज़ें करें और अच्छा मैसेज आर्टिस्ट के तौर पर दुनिया तक लेकर जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जिससे पहले भी आपने बुद्ध का कैरेक्टर किया है, लेकिन इस एल्बम के दौरान आपको किस तरीके का अनुभव आया? क्या है कि पहले जो किया वो हमने एक फ़िल्म की श्री सिद्धार्थ गौतम, और इस बार जब हमने किया एक ये म्यूज़िक था, जैसे उन्होंने कहा है कि एक बड़ा मेडिटेटिव सा ऐसे लग रहा था कि जब वहाँ बैठे हैं तो एक विपस्सना में बैठे हैं और एक बहुत ही अच्छी एक फीलिंग थी। कई बार ऐसे भी सिचुएशंस आई जब रोंगटे खड़े करने वाली सिचुएशंस आती है, जब आप उस फीलिंग को अपने अंदर आप देखते हैं, आप एक मिनट के लिए आपको ये फील होता है। हम तो बुद्ध के खैर नाखून की मैल के बराबर भी नहीं है, तो लेकिन वो जो फीलिंग है उस समय जब आप बैठते हैं और लोग आपको बुद्ध की नज़र से देखते हैं, वो एक आर्टिस्ट के लिए एक बड़ा वरदान होता है, एक बड़ा आशीर्वाद होता है। तो वो फीलिंग मुझे इस गाने में हुई, जिसका सारा श्रेय मैं पूरी टीम को देता हूँ, खासकर राजकुमार बडोले साहब को। धन्यवाद। This evening is a very special occasion for me as a Buddhist as well. So the launch of this Divine Surrender is very special. I have to thank Mr. Padole, Pawas, Malik, and all of the staff that to make this project come to life. I'm a little bit very proud that Thailand is the place that I have to play a small part in this project as well. You see, the music is a means to communicate the teaching of Lord Buddhas to the publics. They are doing their part already, so it is our duty to spread the words and the song to everywhere. And I do hope that
we're gonna have now we have a Hindi version, gonna be a Thai version, and so that the people of the world will enjoy this music all together with the same as the Indian. Thank you very much for the projects, for the musics, for the melodies, and for all the effort that you have put together today. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, His Excellency. जो प्रज्ञा है वो शील है, जो करुणा है, बुद्ध का धम्म जो है आचरण का धम्म है, और इस पूरे विचार को इस डिवाइन सरेंडर में लिया गया है। इसके निर्माण के लिए कई लोगों ने साथ दिया है। युगंधर क्रिएशन की पूरी टीम ही नहीं, बल्कि हमारे नीरज प्रभाकर जी, इन्होंने बहुत मेहनत की। हमारे गगन जी, इनका बहुत ही ज़्यादा इसमें सहकार्य रहा, और बिना किसी मूल्य के कोई इसके ऊपर इन्होंने एक पैसा भी कभी मांगा नहीं। और इस तरीके से पावा जी ने बहुत मेहनत की। जो बुद्ध के इस विचार के लिए जो जीते हैं, ऐसे कई लोगों ने, हमारे नटकीटी जी हो गए थाईलैंड से, सभी लोगों ने बहुत साथ दिया। और पिछले 2 सालों में इसने हमने बहुत मेहनत की, और उसके बाद कही ये डिवाइन सरेंडर जो बुद्ध के विचार के ऊपर जो बनाया गया है, इसका फिल्मांकन पूरा हुआ। मैं सभी मेरे साथियों को, युगंधर क्रिएशन की सभी टीम को, पावा जी को, जिन्होंने बहुत ही अद्भुत तरीके से इस गाने को गाया है, उसी प्रकार के जो थाईलैंड की हमारी सिम्फोनी जो स्टूडियो 28 थी, इस सभी कलाकारों ने बहुत सहयोग किया है। उसी प्रकार हमारे मित्र, हमारे गगन जी, इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से ये इस गाने के लिए फिल्मांकन किया हुआ है। और बड़े प्रयास के बाद 2 साल के बाद ये पूरा जर्नी हमारा सफल हुआ है। मैं सभी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। डिवाइन सरेंडर ही एक संकल्पना जी आहे। भगवान बुद्ध, त्यांचा जो धम्माचा विचार आहे, धम्मपदामध्ये त्यांनी जे विचार सांगितले आहेत, हा संपूर्ण विचारच स्वतः भगवान बुद्ध जसे म्हणतात, अत्तदीप भव, तू स्वतःचा दीप हो, तू स्वतःचा मार्गदाता, तू स्वतःचा मुक्तिदाता, कोणता ईश्वर, कोणताही देव तुला हे नाही, तुझ्या आचरणच हा तू खरा मोक्षाचा मार्ग आहे। आणि हे डिवाइन सरेंडर म्हणजे कोणत्याही ईश्वराला, कोणत्याही देवाला, कुणालाही सरेंडर न जाता तू स्वतःला सरेंडर हो, स्वतःला आतून पहा, अप्पदीप भव। तर तो विचार या गाण्यातून आलेला आहे, आणि म्हणून याचं नाव डिवाइन सरेंडर, म्हणजे एकदम शुद्ध आचरणावर भर दे, अशा पद्धतीचा हा विचार या गाण्यातून आलेला आहे, आणि म्हणून याचं नाव डिवाइन सरेंडर असं आलेलं आहे।